बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी तक हमने यूनिट 18 में जो भी टॉपिक स्टडी किए हैं, इट कम्स टू नो दैट रेडिएशन हैज़ डुअल नेचर। मीन रेडिएशन acts as wave as well as particles. Interference, diffraction, polarization, these are characteristics of waves. These are characteristics of light. These are characteristics of radiations which confirm wave nature of light or wave nature of radiation. But in this chapter, we have learned that black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, these are interaction of radiation with matter. These phenomena, these interactions confirms quantum nature of light, which is particle nature of light. तो इसका मतलब है बच्चों, लाइट और रेडिएशन बिहेव्स एज वेव्स एज वेल एज पार्टिकल। लेकिन ये दोनों नेचर्स साइमल्टेनियसली लाइट एग्जिबिट नहीं करती। जब लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है तो लाइट वेव नेचर शो करती है, रेडिएशंस वेव नेचर शो करती हैं। और जब लाइट या रेडिएशंस के इंटरेक्शन विद मैटर की बात आती है तो कोई भी फिनोमेना वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट नहीं करता। जितने भी फिनोमेनाज हैं वो क्वांटम नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं और कंफर्म करते हैं। जब लुइस डी ब्रागले को इस चीज़ का पता चला, कन्फर्म हो गया कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव्स एज वेल एज पार्टिकल। अब एक्चुअली तो लाइट की एक्चुअल नेचर तो वेव है, लेकिन इट बिहेव एज पार्टिकल इन सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस विच आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एट्सेट्रा। तो फिर लुइस डी ब्रागले ने सोचा कि कहीं मैटर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल वो वेव नेचर शो ना करता। उसने हाइपोथेसिस बनाया, सजेस्ट किया कि जिस तरह से वेव्स पार्टिकल लाइक नेचर शो करती हैं, इसी तरह पार्टिकल्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ शो कर सकती। सो वी आर गोइंग टू start the next topic, wave nature of particles. So let us understand this hypothesis, this suggestion which was made by Louis de Broglie in 1924. Louis de Broglie suggested that material particles in 1924, Louis de Broglie suggested that material particles possess wave-like properties when they move or travel. Louis de Broglie suggested that material particles possess wave-like properties when they move. The waves associated with the motion of particles are called de Broglie waves or matter waves. The wavelength of matter wave is known as de Broglie wavelength. तो बच्चों, जब डी ब्रागले को ये कन्फर्म हो गया कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, तो फिर इसने मैटर के बारे में सजेस्ट किया कि इट हैज़ आल्सो डुअल नेचर।
It means matter which is composed of particle. When these particles move, travel, then they possess wave-like properties. Wave-like properties mean interference, diffraction, polarization. These are the waves-like properties of light. तो उसने कहा कि जब पार्टिकल भी ट्रैवल करते हैं तो वो भी जो लाइट की वेव नेचर है, जो लाइट की वेव प्रॉपर्टीज़ हैं, उसी तरह की ये भी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ये सजेशन थी, ये उसने प्रपोज किया, ये एक हाइपोथेसिस था। These waves are known as de Broglie waves or matter waves, and the wavelength of matter wave is known as de Broglie wavelength. This is de Broglie hypothesis. इसको de Broglie hypothesis भी बच्चों बोलते, de Broglie relation। बच्चों हम पढ़ कर आए हैं कि momentum of photon is P and that is equal to h over lambda. This relation is written as lambda equal to h over. This is momentum of photon. This is the wavelength associated with the photon. And momentum of photon mean P and that is equal to m into c. What is c? It is speed of light, which is mean speed of photon. This is the relativistic mass of photon. Rest mass of photon is 0. Actually, this mass of photon is associated with its energy according to Einstein energy mass relation. जैसे कि बच्चे हम पढ़ कर आए हैं कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। So this is the relativistic mass of photon, c is the velocity of light, so this is the momentum of photon. लेकिन चूँकि साथ हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, उसकी स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से लेस ही होती है। गो कंपेरेबल तो हो सकती है लेकिन इक्वल नहीं हो सकती या ग्रेटर भी नहीं हो सकती। सो फॉर मटेरियल पार्टिकल, अ मटेरियल पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, p इक्वल टू mv। अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, तो फिर p की जगह पे हम mv पुट करते हैं। एंड यू नो दैट व्हेन एवर मटेरियल पार्टिकल इज सेट इनटू मोशन, its mass is relativistic mass, which is greater than the rest mass. So here m is the mass of moving particle and known as the relativistic mass. It can be related to proper mass as m equal to m naught under root 1 minus v square over c square. मास डायलेशन पढ़ा है बच्चों आपने, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसीक्वेंस आपने पढ़ा है। mass of object in the observer frame of reference mean mass of stationary particle, it is m naught, and mass of moving particle is m, that is relativistic mass. So actually this is the relativistic momentum of material particle which is moving, which is traveling. We put the value of p over here, putting in this equation we get the relation lambda equal to h over mv. H is Planck's constant, m is the relativistic mass, v is the velocity of material particle. Now what is this? This is the wavelength of particle during motion associated with the de Broglie waves. This is known as de Broglie relation, which was suggested by de Broglie in his hypothesis कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है और उन वेव्स का वेव लेंथ डी ब्रॉगले वेव लेंथ कहलाता है। वेव्स को डी ब्रॉगले वेव या मैटर वेव कहते हैं। और एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका डी ब्रॉगले वेव लेंथ कितना होगा, उसको डी ब्रॉगले ने एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया। दिस रिलेशन इज नोन एज डी ब्रॉगले रिलेशन। This is de Broglie relation. This relation is de Broglie relation. अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इससे पहले हमने कुछ फिनोमेना पढ़े हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा,
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा। इन फिनोमेना को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट पहले किया गया और थ्योरेटिकली एक्सप्लेन बाद में किया गया। लेकिन वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को सजेस्ट डी ब्रागले ने किया। इट मीन्स कि ये डी ब्रागले की थ्योरी है जो कि उसके ज़हन में आई आफ्टर नोइंग द वेव एंड पार्टिकल नेचर्स ऑफ लाइट। इट मीन्स जब डी ब्रागले ने ये देखा कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, तो फिर उसने सोचा कि मैटर हैज़ आल्सो ड्यूअल नेचर। अब ये फिनोमेना या ये कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरेटिकली पहले सजेस्ट किया गया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाद में किया गया। आपको बच्चों बताया कि दो ही तरीके होते हैं रिसर्च के, साइंटिस्ट के काम करने के। या तो थ्योरी बनाते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, या कोई फिनोमेना ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो दो तरह की रिसर्चेस मौजूद हैं, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पर थ्योरी पहले प्रपोज हुई और इस रिलेशन को वेरीफाई और प्रूव एक्सपेरिमेंटली किया गया। किसने किया? एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बच्चों, ये जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जर्वेबल नहीं है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की मैस ज़्यादा होती है और जो एसोसिएटेड वेव्स का वेव लेंथ है, इट इज़ टू स्मॉल कि हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक हों, मूव कर रहे हों विद वेरी हाई वेलोसिटी, तो फिर उनका वेव लेंथ ऑब्जर्वेबल होता है, मेजरेबल होता है, जिसको फिर दो साइंटिस्ट ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्ज़र्व किया, उसको मेजर किया और थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटली रिज़ल्ट जब मैच हुए तो इस रिज़ल्ट की और इस हाइपोथेसिस को कंफर्म किया। लेकिन जो मैंने बात बताई आपको कि डी ब्रागले वेवलेंथ बड़े बॉडीज़ का ऑब्ज़र्वेबल नहीं होता। अब किस तरह ऑब्ज़र्वेबल नहीं है, एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। नाउ लेट अस वी चेक दिस एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपकी बुक पे एक एग्जांपल कोट की गई है। एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल जिसकी मैस 0.25 kg। इट इज़ पिच्ड विद वेलोसिटी, यानी लीव द बैट, बैट्समैन बैट से उसको स्ट्राइक करता है एंड इट लीव्स द बैट विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। क्रिकेट बॉल इज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड दिस वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो इफ वी calculate the value of lambda by applying the Broglie relation, which is lambda equal to h over mv, then h 6.63 10 raised to power minus 34 joule second divided by 0.25 divided by 20. If you solve this, you get the result which is 1.3 10 raised to power minus 34 meter. So this is too small wavelength and it cannot be observed or measured. But if this relation is tested with an electron which has mass 9.1 10 raised to power minus 31 kg and it is moving with velocity 1 into 10 raised to power 1 meter per second. ये एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसकी मैस हमें पता है. Suppose it is moving with this velocity, which is quite possible, then the value of lambda which we get from this expression 6.63 10 raised to power minus 34 9.1 10 raised to power minus 31 1 into 10 raised to power 6 and you get the answer here about 7.3 10 raised to power minus 10 meter. So the wavelength of waves associated with the motion of electron obtained from the de Broglie relation is lying in the X-rays region of electromagnetic spectrum. आपको बच्चों पता होना चाहिए कि एक्स रेज का वेव लेंथ 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर के आर्डर का होता है.
तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से तो उसकी जो वेव्स हैं उनका वेवलेंथ एक्स रेज रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेंज में आता है, जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है कि मूविंग पार्टिकल बिहेव एज वेव, अगर हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर हमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को लेना पड़ेगा विच आर मूविंग विद हाई स्पीड, तो फिर उनकी वेव्स का वेव लेंथ मेजरेबल हो सकता है और पार्टिकल्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ शो कर सकते हैं।